Hello and welcome back to this channel. Dear students, this topic is solved problems of PCM, that is pulse code modulation. It is the topic from the subject Principles of Communication System. As far as these numericals are concerned, ये numericals बहुत सिंपल है. सिर्फ आपको ये जो मैंने लिस्ट बना के रखा है, दिस लिस्ट ऑफ फॉर्मूले यू नीड टू मेमोराइज, और ये फॉर्मूले भी सिंपल है. जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है नॉइज पावर. I have written it at NP. Noise power is S square upon 12, where S is the step size of quantization. In the last video, I have explained you what is quantization, what are its different types, and so on. So S step size है quantization का. Second formula है number of quantization levels, capital Q, is 2 raised to n, where n represents number of bits per word. थर्ड फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, S by NQ. S is the step size, NQ is the noise power, rather quantization noise power. NQ is the quantization noise power. ये जो वैल्यू दिया है S by NQ, डू रिमेंबर ये दोनों फॉर्मूले, मतलब ये दोनों, दिस इज एप्लीकेबल व्हेनेवर द वैल्यूज आर गिवन इन dB, डेसिबल्स. तो पहला फॉर्मूला S by NQ is 1.8 plus 6n, where n is number of bits per word. 1.8 plus 6n. This is applicable for sinusoidal signal. अब ये word याद रख लो किसी भी सब्जेक्ट में. Word sinusoidal means not only sine wave, it can be sine wave or cosine wave. दोनों के लिए कंबाइंड वर्ड है साइनोसोडियल. तो अगर ये क्वेश्चन में मेंशन किया है कि साइन वेव है या कोसाइन वेव है, देन एंड देन ओनली यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला. अदरवाइज फॉर ऑल अदर टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स यू विल बी यूजिंग सेकंड फॉर्मूला 4.8 plus 6n. ये है 4.8 plus 6n. दिस इज फॉर नॉन साइनोसोडियल वेव फॉर्म. नेक्स्ट इज सिग्नलिंग रेट. Small r is n into fs, where fs is the sampling frequency. And last formula is transmission bandwidth. It is 1/2 into r, where r is the signaling rate. Now let us start solving the numerical. First numerical is an audio signal with, this is audio signal with highest frequency component 3300 hertz. Highest frequency component is denoted by W. So W is 3300 hertz. It is also called maximum frequency. Highest frequency of component is pulse code modulated, मतलब PCM यूज किया है, with sampling rate. Sampling rate is given as, denoted by Fs, which is given as 8000 samples per second. Don't get confused. This unit samples per second is same as unit hertz. So it is same as hertz. The required signal to quantization noise ratio, मतलब it is S by NQ. देखो S by NQ is signal to quantization noise ratio. हाँ, यहाँ पे मैंने S मतलब step size बोला था, it's not step size, it is signal to noise ratio. So S by NQ is signal to quantization noise ratio. Required value is given as 40 dB. First part, what is the minimum number of bits per sample needed? So we have to calculate the minimum number of bits per sample needed. अब देखो number of bits का इसमें से फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है, which the formula which gives you value of number of bits. अब देखो ये दो फॉर्मूले, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल में भी n आता है, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बिट्स, इसमें भी n आता है, सो s by nq. अब ऑलरेडी अवेलेबल क्या वैल्यूज है अपने पास, Q तो अवेलेबल नहीं है, तो वी हैव द वैल्यू ऑफ S by NQ, सो आई विल बी सिलेक्टिंग एनी वन ऑफ दिस टू फॉर्मूले. तो कैसे सोचना है, प्रॉब्लम में ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि गिवन सिग्नल इज साइन वेव, गिवन वेवफॉर्म इज साइन वेव और कोसाइन वेव, इसलिए वी विल बी यूजिंग फॉर्मूला फॉर नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म. सो दिस फॉर्मूला इज S by NQ is equals to 4.8 plus 6n, where we need to calculate n, and n is number of bits per word. Rather, in this case, minimum number of bits per sample needed. Therefore, S by NQ given value is 40, which is equals to 4.8 plus 6n. This will give me 6n is equals to 40 minus 4.8. Therefore, n is equals to 40 minus 4.8 upon 6. If you do this calculation, value of n will be 5.87
0.866। अब ये याद रख लो, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बिट्स। नंबर ऑफ बिट्स का जो आंसर आ रहा है दैट शुड बी ऑलवेज एंड ऑलवेज इंटीजर। तो आंसर आ रहा है 5.866। सो सिलेक्ट नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। सो आई विल से n is approximately equals to 6। हमेशा हायर लार्जर वैल्यू, लार्जर नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू सिलेक्ट करना है आप लोगों को। This is answer of first part. We have calculated minimum number of bits per sample. So minimum number of bits per sample is equals to 6. So 6 bits per sample are needed. Second part, what is the minimum number of quantization level needed? Now number of quantization level is q. Q is equals to 2 raised to n. I am talking about formula number 2. तो ये direct formula है, q is equals to 2 raised to n. सो दिस इज 2 raised to 6। अब देखो इसमें 5.866 वैल्यू नहीं लेना है, जो नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंसीडर किया हमने वो वैल्यू पुट करना है। सो इट इज 2 raised to 6, दैट इज 64। सो आंसर ऑफ सेकंड पार्ट इज मिनिमम नंबर ऑफ यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन लेवल्स नीडेड आर 64। ये लेवल्स है, सो दिस इज यूनिटलेस। This is the answer of second part. This was the answer of first part. Now third part. कैलकुलेट मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ नीडेड। अब देखो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ का ये फॉर्मूला, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं। आई विल राइट इट लाइक दिस, BW मतलब बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू R, वेयर R इज द सिग्नलिंग रेट। सिग्नलिंग रेट दिया नहीं है, सो आई एम पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ R। R इज n इनटू fs। सो दिस फॉर्मूला बिकम्स 1/2, R का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, R इज n इनटू fs, सो n इनटू fs। सिंपली पुट द वैल्यूज, इट इज 1/2 n, value of n is 6 into value of fs. Look at the values. Value of sampling frequency is 8000. So if you do this calculation, this answer will be 24,000, that is 24 kilohertz. This is the minimum transmission bandwidth required. Now the question arises, why this value is given? See, when sampling rate is given, you don't have to think of maximum frequency contained in the signal. अगर sampling rate नहीं देते हैं तो we know the sampling according to sampling theorem, we know that sampling frequency fs should be greater than or equals to 2w. So I would have selected the value like this, fs should be greater than or equals to 2 into 3300। ये कब करना है? अगर fs का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। Let us solve few more numericals. Next problem, a binary channel with bit rate 36 kbps, kilobytes per second। जैसे एक हैबिट लगा लो, प्रॉब्लम पढ़ते वक्त ही जो वैल्यूज गिवन चीजें हैं वो लिख के रखना है। सो बिट रेट इज 36 kbps, सो बिट रेट इज r। डू रिमेंबर दिस नोटेशन, दिस वर्ड bit rate is same as signaling rate। bit rate मतलब signaling rate है, so it is denoted by small r, whose value is given as 36 kbps, kilobytes per second, is available for PCM voice transmission। Find number of quantization levels, मतलब क्या कैलकुलेट करना है? number of quantization levels। so number of quantization level is q कैलकुलेट करना है हमें। then number of bits per sample, number of bits per sample means I need to calculate value of n, and sampling frequency means I need to calculate value of fs। one extra information is given, voice signal is band limited to 34 kilohertz। अब देखो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे न्यूमेरिकल्स रॉन्ग वे से सॉल्व करते हैं क्योंकि उनको वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता। बैंड लिमिटेड का मतलब है ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, मैक्सिमम। सो इट इज सेम एज वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। बैंड लिमिटेड वर्ड का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू। इस ये बैंड लिमिटेड है, मतलब इसके बाद वैल्यूज अलाउड नहीं है। इट मींस इट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। सो डब्ल्यू इज गिवन एज 3.4 किलोहर्ट्ज। अब ये तीन चीजें हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs। वी नो अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग थ्योरम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी greater than or equals to 2w. This is according to the sampling theorem, where w is 3.4 kilohertz. Therefore I will write fs greater than or equals to 3.4 kilohertz, greater than or equals to 2 into 3.4 kilohertz. I'm not using any conversion, I'm keeping it in terms of kilohertz as it is. Therefore sampling frequency
is greater than or equals to 6.8 किलोहर्ट्ज, 2 3.4 6.8। अब देखो कॉमन मिस्टेक, ये एफएस का वैल्यू कैलकुलेट करके आया है, लेकिन यहां पे साइन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब वर्स्ट केस में इक्वल्स टू लेना है। और एक वर्ड याद रख लो, अगर नाइक्विस्ट रेट ऑफ सैंपलिंग ऐसे वर्ड मेंशन करते तभी इक्वल साइन लेना है, अदरवाइज यू नीड टू कंसीडर ग्रेटर देन साइन। अब एक सेंटेंस याद रख लो, फॉर वॉइस ट्रांसमिशन, फॉर वॉइस सिग्नल द स्टैंडर्ड सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी इज 8 किलोहर्ट्ज। ये कंसेप्ट याद रख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम ओरल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। स्टैंडर्ड सैंपलिंग रेट, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी फॉर वॉइस ट्रांसमिशन इफ यू आर यूजिंग पीसीएम इज 8 किलोहर्ट्ज। ये हो गया एफएस का वैल्यू। सो वी हैव कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफएस। नाउ लेट अस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एन। अब देखो ये फॉर्मूला नंबर 4 देख लो, सिग्नलिंग रेट। व्हाई आई एम चूजिंग दिस फॉर्मूला, क्योंकि सिग्नलिंग रेट दिया है क्वेश्चन में 36 kbps। सो आई हैव द फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू N इंटू एफएस। अब ये R का वैल्यू है 36 kbps, ये किलो है, आई एम नॉट मेकिंग एनी कन्वर्जन, आई एम कीपिंग इट एज इट इज। N वैल्यू ऑफ N निकालना है इंटू एफएस इंटू 8। देखो ये भी किलो में है, सो आई एम नॉट मेकिंग एनी कन्वर्जन। यहाँ पे भी अगर आप कन्वर्जन करोगे तो या 36 इंटू 10⁻³ या 8 इंटू 10⁻³ दोनों 10⁻³ कैंसिल हो जाएंगे। एनीवेज इफ यू वांट मेक एनी कन्वर्जन देन आल्सो इट विल डू, क्योंकि दोनों साइड किलोबाइट्स में, किलो में यूनिट आ रहा है। सो n विल बी 36/8। सो 36/8 is approximately 4.5. His value answer is 4.5, but we have to select this value as an integer value, so approximate value of n is 5। जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किया, ऑलवेज गो फॉर हायर वैल्यू। 4.5 कैलकुलेशन करके आए, नियरेस्ट स्टैंडर्ड इंटीजर हायर वैल्यू इज 5, सो n इज इक्वल टू 5। नाउ लास्ट पार्ट, ये हमने निकाला, एफएस निकाला, n निकाला। अब Q कैलकुलेट करना है। Look at the list of formulae. Q means number of quantization level. It is directly related to value of n as Q is equals to, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, Q is equals to 2n. So it is 2⁵. So 2⁵ is 32. That means 32 quantization levels are required. Next problem, a television signal with bandwidth of 4.2 मेगाहर्ट्ज। अब देखो ये बैंडविड्थ दिया है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज अप टू 4.2 मेगाहर्ट्ज। वी नो दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय W, so W is 4.2 megahertz. If you want to convert it into hertz, it is 4.2 into 10⁶ hertz. Is transmitted using binary PCM pulse code modulation. Number of quantization levels is equals to 512. Number of quantization levels मतलब value of Q. Q is given as 512. Calculate. First part code word length, second transmission bandwidth, third final bit rate, fourth output signal to quantization noise ratio. अब देखो कैलकुलेशन कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट कोड वर्ड लेंथ, लुक एट द अवेलेबल फॉर्मूले। वी हैव द वैल्यू ऑफ Q. Q का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड, इसका मतलब कोड वर्ड लेंथ, वन एंड द सेम थिंग। नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड मतलब एक वर्ड में कितने बिट्स है ये कैलकुलेट करना है, विच इज सेम एज द कोड वर्ड लेंथ। सो आई हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n मेकिंग यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ही क्यों यूज करना है, क्योंकि Q का वैल्यू दिया है। सो आई विल राइट दिस फॉर्मूला लाइक दिस, Q इज इक्वल टू 2n। मुझे n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब ये डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये 2n है, इसलिए दोनों साइड लॉगरिथमिक लेते हैं। सो आई विल राइट इट लाइक दिस, log ऑफ Q। पहले वैल्यूज पुट करते हैं। Q का वैल्यू है 512 इज इक्वल टू 2n। Take log on both sides, so log of 512 is equal to log of 2n. Therefore log of 512, ये log क्यों लिया, ये 2n, ये n कैलकुलेट करना है। अब देखो लॉगरिथमिक ऑफ 2n मतलब ये n टर्म हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इट इज n log 2। Therefore n is equals to log of 512 divided by log of 2।
ये कैलसी पे कैलकुलेट करना है। याद रख लो ये 2n है, हमें पावर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब 2n पावर n है, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसलिए लॉग लिया दोनों साइड का। आई हैव जस्ट सिंप्लीफाइड द इक्वेशन। सो आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ n विल बी 9. So this gives me the code word length, मतलब 9 bits per word are required. This is answer of first part. Now second part, transmission bandwidth. अब available formula देख लो। Transmission bandwidth का ये formula है 1/2 into r. So I will write bandwidth is equals to 1/2 into r. But r is directly not given and r is n into fs. So I will write this formula as 1/2 n into fs. Value of fs is also not given. Fs is the sampling frequency, but value of w is given. We know the basic formula. fs is greater than or equals to 2w, जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी डिस्कस किया. So fs will be greater than or equals to 2 into w. W is 4.2 megahertz, so it becomes 8.4 megahertz. I'm not making any conversion, so I'm keeping megahertz as it is. 4.2 into 2, it becomes 8.4 megahertz. Greater than or equal to दिया है. अब देखो ये टेलीविजन सिग्नल का एग्जांपल है. अगर वॉइस ट्रांसमिशन का होता है तो we would have taken fs as 8 किलोहर्ट्ज, लेकिन ये टेलीविजन का है, so I will choose the value of fs as 8.4 megahertz. ये कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है. अब ये वैल्यूज पुट करते हैं डायरेक्टली, तो ये आएगा बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू n. n का वैल्यू है 9 इंटू fs. जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, fs आई विल बी टेकिंग इट एज 8.4. कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में जो आंसर आएगा उसका यूनिट सेम रखेंगे हम लोग, मेगाहर्ट्ज. स्टिल इफ यू वांट टू मेक अ कन्वर्जन 1 मेगाहर्ट्ज इज 10⁻6 हर्ट्ज. ओके, सो दिस वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ will be, if you solve this on the calculator, this is 37.8 megahertz. This is answer of second part. In the second part we have calculated the value of transmission bandwidth. अब third part में देखो, what is asked in the third part? Final bit rate is same as signaling rate, that is small r. ये words आप लोग याद रख लो. Signaling rate is same as bit rate. So final signaling rate, that is bit rate, r is equals to n into fs, which is value of n is 9 into fs. Fs is 8.4 megahertz. Again I am not making any conversion, so r is equals to 75.6 m, मतलब मेगाबाइट्स पर सेकंड. क्योंकि मैंने कन्वर्जन नहीं किया था इसलिए डायरेक्टली मेगा यूनिट था, वो एज इट इज रखा है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्ड पार्ट, दैट इज फाइनल बिट रेट. फोर्थ पार्ट, दिस इज आंसर ऑफ थर्ड पार्ट. नाउ फोर्थ पार्ट. इन द फोर्थ पार्ट इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट आउटपुट सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो. अब सिग्नल टू क्वांटाइजेशन, ये एस मतलब स्टेप साइज नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज. ये जो पहला फॉर्मूला है नॉइज पावर का, इसमें एस जो है दैट इज स्टेप साइज. नोटेशन सेम है इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है. यहाँ पे सिग्नल टू नॉइज क्वांटाइजेशन रेशियो फॉर साइनसोडियल दो फॉर्मूला अपने पास, साइनसोडियल और फॉर सेकंड इज फॉर नॉन साइनसोडियल. इसमें कहीं पे भी साइनसोडियल वर्ड मेंशन नहीं किया है, सो आई विल बी यूजिंग दिस सेकंड फॉर्मूला. एंड बाय डिफॉल्ट जो कैलकुलेशन करेंगे यूजिंग एनी वन ऑफ दिस फॉर्मूला, आंसर विल बी डीबी, दैट इज डेसिबल. सो इट इज 4.8 plus 6n, which is 4.8 plus 6 into 9. Value of n is 9. Therefore s by n q is equals to, ये कैलसी पे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 58.8 decibels, that is dB. So dear students, I have covered the possible variations in the numericals of pulse code modulation. So that's it for today's session. So thanks a lot for watching this video.